Hello everyone. Welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET. आज जेई मेन रिवीजन सीरीज का 13th डे है। हम जीओसी पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 आप सुबह देख चुके हैं और इस समय हम पार्ट 2 एसिडिटी बेसिसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने जेई मेंस में कभी भी आए हुए क्वेश्चन स्टडी किए हों तो आप पाएंगे कि पूरी जीओसी में एसिडिटी बेसिसिटी इज सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Plus, it is something that always shakes our confidence that am I right, am I not? It is a topic which shakes confidence of even James Bond. So let me try and share my approach, which hopefully will simplify your confusions, will solve your doubts, and increase your confidence to approach for JEE Mains. So let's start. But before that, I'd like to request you all to definitely subscribe our channel if you haven't subscribed till now. Do not forget to share and like our videos. If possible, definitely propagate it amongst your school friends, amongst your coaching friends or hostels, or if some teacher is watching, please share it with your students. So let's start acidity and basicity. So this is our acidity basicity. Before proceeding, let us first revise what are different theories given for acidity and basicity. So the first theory of acidity and basicity was Arrhenius concept. ये सबसे पहले सबसे शुरुआत में आई theory है and in fact is one of the very easy and something that you can handle and relate very easily, so is still very relevant and useful. According to it, any compound when dissolved in water releases proton is an acid, and a compound which when dissolved in water releases hydroxide ion will be called a base. But the drawback of this theory is that you have to limit yourself for water as a solvent. But ऐसा तो कई बार हो सकता है, there could be so many compounds which might not be soluble in water. तो क्या वो एसिड और बेस का कोई रिएक्शन कभी भी एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे? दैट इज इन फैक्ट द ड्रॉबैक ऑफ अरहीनियस। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि किसी भी कंपाउंड को एक एसिड या बेस की तरह बिहेव करने के लिए उसके अंदर उस कंपाउंड में H+ या OH- प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइड आयन इसकी प्रेजेंस होना जरूरी है, which again is a problem because acid base is a very wide concept and is not limited only to certain atoms or certain solvents. But still, क्योंकि water is a universal solvent, so definitely हम कह सकते हैं कि इसका यूज तो बहुत ज्यादा है। इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल जो हो सकते हैं वो है HCl, वाटर, H2SO4, HNO3, CH3COH, etc. बेस के एग्जाम्पल NaOH, KOH, LiOH, etc. सेकेंड थ्योरी जो बहुत ही रेलेवेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटिक कॉन्सेप्ट. इस पर्टिकुलर थ्योरी का ही नाम है कि इट इज अ प्रोटिक थ्योरी बिकॉज इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ही as per this theory, any compound that acts as a proton donor in a chemical reaction is called an acid, and a compound which acts as a proton acceptor in a chemical reaction is called a base. यहां पर किसी भी सॉल्वेंट को मेंशन नहीं किया गया है, कोई ऐसा हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है कि सिर्फ वाटर में, सिर्फ CS2 में, सिर्फ बेंजीन में नहीं. आप जिस भी सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं वहां जो रिएजेंट प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है और जो रिएजेंट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है. That is a very direct approach they have developed. Important difference with Arrhenius theory is no need for acid और बेस टू आयोनाइज. इसने ये नहीं कहा कि उसको H+ देना या OH- देना या इस तरह का कोई आयोनाइजेशन मेंशन नहीं है. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर H+ दिया गया या लिया गया, सो आयोनाइजेशन जरूरी हो ये कहीं पर भी नहीं कहा गया. Acid-base reaction is no more limited to aqueous condition that I have already told, but still the drawback is that they are limiting the acid-base reaction only to proton. कि भाई H+ का शामिल होना, H+ के बारे में बातचीत
अभी भी लिमिट करी गई है, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक था। थर्ड और सबसे आई शुड से वाइड स्प्रेड, जो अपने अंदर लगभग सभी थ्योरीज को शामिल कर लेती है, वो है लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या है लुईस एसिड बेस थ्योरी? एनी कंपाउंड विच कैन एक्ट एज एन एक्सेप्टर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन एसिड, एंड दोज विच कैन एक्ट एज अ डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ बेस। अब यहाँ किसी भी एटम को लेकर कुछ बातचीत कर ही नहीं गई, सीधे ही कह दिया भाई कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पेयर का डोनेशन करा है तो आप बेस हैं, और आपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करी है तो आप एसिड हैं, चाहे आपके पास H+ हो ना हो, चाहे आपके पास OH- हो ना हो। तो ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है। इनफैक्ट यही पॉइंट इसको कई बार ड्रॉबैक की तरफ भी खींच लेता है। कैसे ड्रॉबैक? मतलब कोई भी रिएक्शन अल्टीमेटली तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी हम उसको हटा दें तो केमिस्ट्री में क्या है, सभी में तो शेयरिंग, डोनेशन, एक्सेप्टेंस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये ऐसी थ्योरी है जिसमें आप दुनिया की लगभग मैक्सिमम रिएक्शंस को एसिड बेस के नजरिए से स्टडी कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लुईस एसिड इज AlCl3, BF3, any carbocation, H+, नाइट्रोनियम आयन NO2+ is नाइट्रोनियम आयन, NO+ is नाइट्रोसोनियम आयन। लुईस एसिड के एग्जाम्पल हैं अमोनिया, वाटर, कार्बन आयन, OH-, Cl-, एसेट्रा। ये सब इसके लुईस बेस के एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। ये देखिए जो मैं बात कह रही थी वही हम यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अरेनियस थ्योरी इज टोटली dissolved into Lorry Bronsted, मतलब anything that is an areneous acid will definitely be Lorry Bronsted acid। ये अर्थ हुआ, जो उसका बेस है वो कहीं ना कहीं लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के जितने एग्जाम्पल है वो लुईस से एक्सप्लेन हो सकते हैं, हाँ, लेकिन लुईस के एग्जाम्पल आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सारे के सारे, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं। इसी तरह से आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड के सारे एग्जाम्पल अरहीनियस से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ग्रू विथ टाइम। अब हम आते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉरी ब्रॉन्स्टेड की ही थ्योरी का हिस्सा है, उन्हीं ने दिया है और उसी थ्योरी का पार्ट है। एंड इनफैक्ट हमारे सिलेबस, हमारे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते हुए यही कॉन्सेप्ट है जो हमारे को डेवलप करना है एज अ कमांड। हमें ये चीज अगर अच्छे से जड़ से समझ आ जाती है तो कोई भी एसिड बेस का सवाल आ जाए आप कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल कर पाएंगे। आइए तो समझने की कोशिश करें। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है? इन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अ कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसिड और अ बेस विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यहां मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे कोई एक एग्जाम्पलीफाई मैंने डाउन में किया ही है, वाटर, वाटर एम्फोटेरिक। आप वाटर को एब्सोल्यूट में डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये तो हमेशा के लिए एसिड है, ये हमेशा के लिए बेस है। कोई भी चीज एसिड भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। जब हमें कोई बताए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप कमेंट करें, तभी आप उसको एसिड या बेस की कैटेगरी में व्यवस्थित तरीके से बांट पाते हैं। यही ये मैंने कहा है कि एन एसिड और बेस विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट इन एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। यहां देखें वाटर और CH3COH की रिएक्शन में CH3COH ने H+ दिया, वाटर ने लिया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। वाटर यहाँ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वो H+ एक्सेप्टर है। वहीं पर दूसरी जो ग्रीन में मैंने रिएक्शन लिखी है कि अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम बन रहा है और OH-, तो यहां पर वाटर क्या कर रहा है? H+ दे रहा है टू अमोनिया। और इसलिए इस रिएक्शन के अंदर, ग्रीन वाली रिएक्शन के अंदर, अमोनिया के साथ वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड। So a conjugate acid is formed when a conjugate base accepts a proton. अगर आप देखें तो
एक कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर के अंदर जब अमोनिया ने H+ लिया तो ये बेस था, और जब वो H+ ले चुका है तो जो चीज बनती है ये उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। बट आप ये हमेशा याद रखें कि कॉन्जुगेट एसिड बेस बिल्कुल पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एंड देयर हैज टू बी एज अ रूल ऑलवेज a difference of only single proton in a conjugate acid and base pair। मतलब conjugate acid में से जब हम H+ हटाएंगे तो हम conjugate base पाएंगे, करेक्ट। और क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, conjugate concept is always based on equilibrium, और वही conjugate base जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो हम conjugate acid पाएंगे। ये फिक्स एक सेटिंग है। देयर हैज टू बी डिफरेंस ऑफ ओनली सिंगल प्रोटॉन इन अ कॉन्जुगेट एसिड एंड अ कॉन्जुगेट बेस पेयर, राइट। ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। H2SO4 अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस विल बी HSO4 माइनस, और HSO4 माइनस फिर से अगर एक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो होगा SO4 2 माइनस। लेकिन गलती से भी आप कभी ये ना करें कि H2SO4 और उसका कॉन्जुगेट बेस आपसे पूछा गया और आप सल्फेट टिक करके आ गए। ये गलत है, क्योंकि एक एसिड और बेस पेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ का अंतर, एक ही H+ का वेरिएशन होना चाहिए। H2SO4 और सल्फेट में 2 H का अंतर है, ये कॉन्जुगेट नहीं कहलाएंगे। अब आप आगे बढ़े, H3O+ का कॉन्जुगेट वाटर, और वाटर का कॉन्जुगेट बेस इज OH माइनस। अगेन H3O+ एंड OH माइनस ये आपस में कोई कॉन्जुगेट पेयर नहीं बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इस टेबल को जरूर ध्यान से देख लें कि कॉन्जुगेट पेयर आप बिल्कुल आपके अंदर एक मेमोरी की तरह सेट होना चाहिए कि दे हैव टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओनली सिंगल प्रोटॉन। जब हम कॉन्जुगेट बेस और एसिड की पेयर बनाना और समझ जाते हैं कि भाई किस तरीके से, तो आइए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो, इस कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट के अंदर, इन अ कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट, हम जब Ka और Kb ऑफ एसिड और बेस को लिखने जा रहे हैं तो अमोनिया अगर वाटर के अंदर है और अमोनियम बना रहा है तो इसे मैंने नाम दिया है पेयर 1। पेयर 1 का कॉन्जुगेट बेस है अमोनिया, तो कॉन्जुगेट उसका एसिड है अमोनियम। वाटर और हाइड्रोक्साइड ये दोनों एक पेयर है, इसको मैंने येलो से मार्क करते कहा कि ये पेयर 2 है, ये कॉन्जुगेट एसिड 2 और ये कॉन्जुगेट बेस 2, राइट। अब हम आते हैं कि K इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इक्वेशन 1 इज concentration of ammonium into OH minus upon concentration of ammonia and water। मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम बोलते हैं, बट आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में शब्द एक्टिविटी इज मोर करेक्ट, बट यूजुअली वी गो बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। अब इसी को के इक्विलिब्रियम ऑफ इस रिएक्शन 1 को मैं Kb ऑफ अमोनिया भी कह सकती हूँ। दिस इज Kb ऑफ अमोनिया। अब ये Kb ऑफ अमोनिया हम लिख सकते हैं बाय बाय दिस particular equation कि K equilibrium is concentration of NH4 plus into OH minus upon ammonia. Why I remove water? Because activity of a pure substance, water, will be 1, right? अगर आपको इस तरह की बातें कहीं और भी समझनी है कि ये, अगर आपको ये बात और भी समझनी हो कि ये सब मैंने कैसे किया, तो मैं 2 मिनट बाद आपसे दूसरे एक अपने ही वीडियो की, हमारे ही चैनल के वीडियो की लिंक शेयर करूंगी। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट मोर इन डेप्थ इफ यू वांट। अदरवाइज फॉर मेंस व्हाटएवर आई एम शेयरिंग इज इनफ। नाउ अभी जो हमने जस्ट पहले जो किया दैट वाज ऑफ अमोनिया। अब मैं आ रही हूं अमोनियम पर कि अगर अमोनियम के एज एन एसिड बर्ताव को मैं लिखूं तो अगेन व्हाट आई हैव डन इज सेम थिंग कि ये है एसिड कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, दिस इज आवर पेयर 1, and this water and H3O plus this time is our pair 2,
in pair to, again you can say H plus का एक का ही difference, in same way ammonium और ammonia. Similar तरीके से इस बार जो मैं K equilibrium लिख रही हूं वही लिखते हुए जब मैं आगे बढ़ूंगी तो it is Ka of ammonium, it is Ka of ammonium ion. Again क्योंकि water की activity is 1, so it is hydronium ion into ammonia concentration upon ammonium. That is the Ka of ammonium ion. हम इन दोनों चीजों को Kb of ammonia और Ka of ammonium मतलब conjugate base और conjugate acid के K और Kb को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो we will end up getting that it is coming to be equal to Kw, right? Ionic product of water. So क्या पाया हमने? Ka of conjugate, sorry, Ka लिखा है तो I should write conjugate acid. Ka of conjugate acid multiplied by Ka of conjugate base is equal to Kw. हम इसी चीज को एक और तरीके से लिखते हैं, pKa of conjugate acid plus pKb of conjugate base will be equal to pKw. हाँ, ये बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखना बेहद जरूरी है कि ये बात, ये जो मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस कंडीशंस में ही लागू होगी. क्यों? क्योंकि आपने H प्लस और OH माइनस का इस्तेमाल करा है, आपने वाटर को ऐसा सॉल्वेंट कंसिडर करा है और ये पूरा सॉल्व करा. अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो ये इक्वल टू pKw वाला पॉइंट इक्वल टू Kw वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा. और अगर आपने टेम्परेचर बदला तो Kw की वैल्यू बदलेगी, तब आप उसे 14 से नहीं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो pKw होगा उससे इक्वेट करेंगे. लेकिन ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पाकर कि K और Kb का प्रोडक्ट एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए निश्चित टेम्परेचर पर, तो जाहिर है अगर दो में से किसी एक की वैल्यू हाई है तो दूसरे की लो होगी, या दूसरे की हाई है तो पहले की लो होगी. दोनों ही हाई हो जाए ये अब नहीं हो सकता. इन अ कॉन्जुगेट पेयर, इफ one acid is strong, the base will be weak, or if the base is strong, then the conjugate acid will be weak. Both strong acid, both strong acid or a base, both weak acid or a base, ये combination हो ही नहीं सकती. That is just not possible. Correct? इस चीज को आप और अच्छे से समझें तो यहां मैं लिंक शेयर करी हूं. टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ द अबाउट टू वैल्यूज जो मैंने यहां और लिखी हैं, आप ये दोनों शेयर करें, ये दोनों वीडियोस वॉच करें जो मैंने यहाँ शेयर करे हैं. मैं इसे डिस्क्रिप्शन में एज अ डायरेक्ट लिंक भी शेयर करूंगी. मैं अपने सारे ही वीडियोस में एनी अदर रिलेवेंट वीडियो फ्रॉम आवर चैनल प्लेलिस्ट इज वी आर शेयरिंग दैट. अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज गो थ्रू देम and clear your doubts through comments or through mail to us. So pK of water is 15.74, pKb of OH minus is minus 1.74. ये पूरा डेरिवेशन इन वीडियोस में डिस्कस किया गया है. खैर, हम इन दोनों वैल्यूज को याद रख लें. pKa of water 15.74 and pKb is minus 1.74. और इनके कंक्लूजन की तरफ बढ़ें. कोई भी ऐसा एसिड जिसका pKa की वैल्यू माइनस 1.74 से भी कम हो विल प्रोटोनेट वाटर कंप्लीटली. जरा देखें, pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka. तो अगर pKa की वैल्यू हम कम करने को कह रहे हैं तो Ka की वैल्यू हम बढ़ाने को कह रहे हैं. इनडायरेक्टली मैं क्या कह रही हूं, मैंने इस pKa की वैल्यू को माइनस 1.74 पा लिया तो इनडायरेक्टली मेरे पास K ऑफ वाटर है. अब मैं कह रही हूं कि कोई भी दूसरा एसिड जिसकी Ka की वैल्यू वाटर के Ka से ज्यादा हो, मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. तो एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर विल प्रोटोनेट वाटर कंप्लीटली. उसके सामने वाटर विल एक्ट एज अ बेस. That is what we are saying, right?
सिमिलरली बेस की अगर बात करी जाए तो कोई बेस B है, उसका कॉन्जुगेट एसिड HB हैज अ हायर पीके देन 15.74। सोचें जरा, इस बार हम कह रहे हैं कि उसका पीके का वैल्यू 15.74 से ज्यादा है, will deprotonate water completely, तब उसका conjugate base will become stronger base। pK ज्यादा मतलब Ka कम, Ka कम है वाटर से, तो बेस तो उसका स्ट्रॉन्गर हो गया ना वाटर से। if base conjugate base is strong, then it will abstract all H plus from water, it will deprotonate water completely। So this is a very logical thing. In short, I would like to say a fixed thing that always as a rule in acid base reactions, a strong acid will be the first one to react in a group of acids, a strong base will be the first one to react in a group of base। दैट इज अ रूल। और हमेशा ध्यान रखें कि अभी तक हमने जो भी बातें कही और करी हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए बात चल रही है, राइट। ये वैल्यूज जो मैं दे रही हूं ये सभी वाटर के लिए दी गई हैं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि बहुत ही जबरदस्त होता है किसी भी एसिड को एसिड होने या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होना है इस बात को डिसाइड करने में। जैसे देखिए HCl बड़ा अच्छा एसिड है, हम सब जानते हैं HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आप जब इस HCl को एक्वस कंडीशन में आयोनाइज करते हैं और H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनाते हैं, तो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का डेल्टा G एट 298 केल्विन इज -40। सो स्पॉन्टेनियस द रिएक्शन इज, -40 किलो जूल्स पर मोल। मतलब ये रिएक्शन पानी के अंदर धड़ 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 एकदम बुलेट ट्रेन की तरह फॉरवर्ड दौड़ने वाली है, H प्लस और Cl माइनस बनने वाला है। पर अगर यही रिएक्शन आपने गैसियस स्टेट में ले ली, गैसियस स्टेट में आते ही जरा डेल्टा जी की वैल्यू तो देखो और उसका साइन तो नजर डालो। क्या कहा जा रहा है कि इट इज अ +1347। प्लस तो प्लस, वैल्यू की मैग्नीट्यूड इज सो हाई। मतलब गैसियस स्टेट में HCl एसिड शब्द को पहचानता ही नहीं है, वो एसिड होना ही नहीं चाहता, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। इतनी हाई पॉजिटिव डेल्टा जी अगर किसी इक्विलिब्रियम की है तो वो कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा। मतलब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन गैसियस स्टेट में संभव नहीं। सो एक्सक्यूज मी। तो सॉल्वेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट असर किसी भी एसिड को एसिड की ताकत डिसाइड करने में होता है। तो हमें हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि ये क्वेश्चन किस सॉल्वेंट के लिए पूछा जा रहा है। और अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का सॉल्वेंट का बात किया ही नहीं जाए तो डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो बाय द idea of water as a solvent because universal solvent है, यूजुअल पीके पीकेबी की बातें पीकेडब्ल्यू से इक्वेट करके की जाती हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बट दैट इज अ कन्वेंशनल प्रैक्टिस, नॉट अ यूनिवर्सल अप्रोच। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट दैट इज अ कन्वेंशनल सेट कि कुछ नहीं दिया है तो आप पानी मानकर सवाल कर दीजिए। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट अल्टीमेटली किसी भी एसिड को एसिड की स्ट्रेंथ डिसाइड करने को। जैसे कि एक तो हमने सॉल्वेंट की बात करी ही, लिखते ही मैंने आपको एक चीज और बताई कि डेल्टा जी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बातें हो रही, तो डेल्टा जी इज द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, not delta H। Be very clear, it is not a reverse, it is not an irreversible reaction। For reversible reactions, it has to be delta G, and delta G is equal to delta H minus T delta S, right? Delta H is ultimately enthalpy, will be influenced by the stability of our conjugate base। तो अगर कोई चीज एसिड है, आप तुलना कर रहे हैं दो डिफरेंट एसिड्स की, जैसे HA और HB, आप इनकी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आप सेम सॉल्वेंट के अंदर कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ये तो लगभग दोनों का एक सॉल्वेंट के अंदर सिमिलर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। A माइनस और B माइनस, इनमें से जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ पुश होगा।
और फॉरवर्ड की तरफ पुश होगा तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ Ka विल इंक्रीज. तो विथ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी of conjugate base, more stable conjugate base, तो more strong acid, और बेहतर अंग्रेजी कहें तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. करेक्ट. तो अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए. अब नॉर्मली बेस जो बनता है यूजुअली वो एक अनायन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करें, अगेन लिमिटिंग ourselves टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल्स, तो यूजुअली जो कॉन्जुगेट बेस हमें मिलने वाले हैं वो अनायन होंगे. अगर वो अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी स्टेबिलिटी हमारे लेक्चर 1 जीओसी से रिलेटेड हो गई कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक -I ग्रुप्स हो, -R ग्रुप्स हो, -H कुछ हो तो भाई मिल जाए बहुत बढ़िया है. और इट विल बी इनवर्स टू अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, +R +H, ऐसे ग्रुप्स जो हैं इनकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटीज को बढ़ाएंगे. तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या सीखा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस. दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Ha. देखिए यहां पर जो हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे थे, हमने कहा H+ की तो स्टेबिलिटी दोनों ही इक्विलिब्रियम के लगभग समान है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है. A-B- की बात हमने कर ली. दूसरा फैक्टर डेफिनेटली आएगा कि Ha और Hb को ब्रेक करने के लिए भी तो आपने एनर्जी खर्चा करी, क्योंकि डेल्टा H की बात करनी है. इट इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. तो अगर मुझे कम एनर्जी लगती है इन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरी कमजोर है, कम है, तो जाहिर है कि इक्विलिब्रियम विल बी मेड फॉरवर्ड मोर इजीली, है ना. फॉर हायर Ka, अगर आपको ये ज्यादा चाहिए तो आपको Ha की बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, ये कम होना चाहिए. और इसका एग्जाम्पल आप बहुत बढ़िया से पहचानते हैं, जैसे कि Hi is a stronger acid than HBr, is stronger acid than HCl, is far stronger acid than HF. और रीजन क्या है कि आप जैसे से नीचे जाते हैं आप कंपैरिजन कर लीजिए Hi और HBr का, कि ये H+ और I-. This is a perfect set of example for both the above effect. Which above effect? Conjugate stability. I- is a larger anion, बड़ा. तो नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी ऑन I- will be less as compared to the negative charge density on bromide. So definitely conjugate base I- is more stable, making the equilibrium forward. Factor number 1 जो हमने डिस्कस किया. Factor number 2, H और I की बॉन्ड कमजोर है because the energy gap between H and I is larger. तो जब दोनों में बॉन्ड का गैप, बॉन्ड एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड दोनों में एनर्जी का गैप ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है और कम एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो दोनों ही फैक्टर मिलकर अल्टीमेटली क्या प्रूव करते हैं कि K of Hi is going to be much stronger than HBr. फैक्टर नंबर 3, सॉल्वेंट. We have already discussed, I think आप लोगों को भी 2 मिनट पहले ही बात करी है. HCl गैसेस और HCl एक्वस में वही बात की बात कर रहे हैं. ये पॉइंट भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऑलवेज एज अ रूल स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स फर्स्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, राइट. जब तक ताकतवर एसिड मीडियम में प्रेजेंट है तो पहला डिसोसिएशन उसी का होगा. वीक एसिड पहले डिसोसिएट नहीं कर सकता, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के सारे H+ खर्चा हो जाए, कंज्यूम हो जाए बाय अ बेस, बाय सिंपल आयनाइजेशन. जब वो खत्म हो जाएंगे तब आप वीक एसिड के आयनाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं, राइट. और इसी क्वेश्चन को कि पहले स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाए, JEE 2003 का एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ सैंपल क्वेश्चन देती हूँ. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से एसिड साइट्स हैं. मैं कहूंगी मेरे पास पहला एसिड साइट है ये नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप लगा है. सेकेंड इज सिंपल फिनॉल, थर्ड इज अल्काइन एंड फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इन सब में अगर मुझे कहा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड.
उसके बाद ऑक्सीजन से लगा H विल बी मोर एसिडिक देन कार्बन से लगा H। तो ऑक्सीजन से लगा H, बट मेरे पास ऐसे दो है। नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर विल मेक 1 टू बी मोर एसिडिक देन 2 एंड लास्टली 3। पर यहां तो कहा गया है कि भाई आप 2 ही मोल्स ऑफ NaNH2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 2 ही मोल्स ऑफ NaNH2 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम सारे एसिड्स को नहीं डाल सकते इन रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन में। अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा H जाएगा और कौन सा H कंटिन्यू होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब दिस इज गोइंग टू रिएक्ट फास्ट विद NaNH2, Na+ बन जाएगा, है ना, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगी 2 मोल्स। अब सवाल है दूसरा कौन सी जगह, मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो, और ये दोनों H विल रिमेन अनडिसोसिएटेड, और इसलिए ये जो आगे जो मोर एसिडिक हमारे साइड्स हैं ये दोनों रिएक्ट किए विथ NaNH2, राइट। आइए अब हम शुरू हो जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स की आपस की एसिडिटी के लिए, है ना। एसिड्स में बात करें तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स अगर एसिड की तरह बर्ताव करते हैं तो अल्कोहल्स दे फॉर्म अल्कोक्साइड आयन एंड रिलीज H+। अगेन लेट मी एग्जाम्प्लीफाई। अगर हमसे पूछा गया कि बताइए C2H5OH, राइट, वाटर और आइसोप्रोपेनॉल, इनमें कंपैरिजन करिए के का कंपेयर, तो आपकी हमेशा एक तो हमेशा एसिड बेस सवालों में आदत डालें कि इक्विलिब्रियम लिखें, राइट। हमेशा सभी के लिए कॉमन है ये H+, ये सभी इक्विलिब्रियम पर आएगा। आप इक्विलिब्रियम लिखें, उसके बाद ही सवाल की शुरुआत करें। बेस बोल रहा है तो H+ जोड़कर लिखिए, एसिड बोल रहा है तो H+ हटाकर लिखिए, पर लिखिए जरूर। ऑर्गेनिक में यू हैव टू हैव दिस, रिलीजियसली आपको फॉलो करना ही करना है कि पेन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। लिखने से आधी गलतियां खत्म हो जाती है बच्चों। जितना आप दिमाग में करने की कोशिश करेंगे फिर आप वो वाली गलतियां करेंगे कि मैडम बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गई। सो डोंट डू दैट, राइट, डू प्रॉपरली, कम सवाल करो, अच्छे से करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ। आइए, तो ये तीनों हमारे कंपाउंड से यहां बने, तीनों अनायंस बने। कॉमन क्या है तीनों में? O- कॉमन है। अब आती है बात डिफरेंट क्या है, तो मैं कहूंगी यहाँ C2H5, यहाँ H, यहाँ आइसोप्रोपाक्साइड। अप्रोच सीखिए आप। तो ये तो है रेफरेंस ना, इसमें कोई प्लस है, प्लस आई है, ना कोई माइनस आई है। इथाइल और आइसोप्रोपाक्साइड मोर प्लस आई है यहाँ पर, तो ये ज्यादा प्लस आई करेगा। ओ हो, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अनायन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, और अनायन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो ये रिएक्शन तो पीछे भागेगी, वापस अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये अनायन अनस्टेबल है। सो ये अनस्टेबल है, इसको मैं कह रही हूं कि मोर प्लस आई, ओके, और इसमें रिलेटिवली लेस प्लस आई। अल्टीमेटली अगर मुझसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कहा गया तो आई विल से कि सबसे ज्यादा स्टेबल इज HO माइनस, देन इट इज C2H5O माइनस, एंड देन इट इज आइसोप्रोपाक्साइड। तो अगर K पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे 2 विल बी ग्रेटर देन 1 विल बी ग्रेटर देन 3। यहाँ कई बच्चों के दिमाग में वो एक एक्सेप्शन वाला ख्याल आ गया होगा अभी तक कि मिथनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, तो हमें ये एक्सेप्शन जेई मेंस के लिए याद रखना है क्या? तो बच्चों मेरी तरफ से बिल्कुल भी याद ना रखें। जेई मेंस एडवांस दोनों इस चीज का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो मिथनॉल और वाटर की कॉम्बिनेशन सवाल में नहीं पूछते, कारण वो चीज एनसीईआरटी में कहीं पर भी, 4 वॉल्यूम आप ले लीजिए, 11th के दोनों 12th के दोनों, कहीं इसका कोई जिक्र कोई मेंशन नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ वेरी पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सेप्शन, सो नो नीड टू गो फॉर इट। उसे ऐसा आप खास याद रखें ना रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नहीं पूछा जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिनॉल्स।
फिनॉल एसिडिक होंगे, यस, बहुत बढ़िया से एसिडिक होंगे। फिनॉल क्योंकि जब H+ रिलीज करते हैं, अब मैं हमेशा आपसे बोल रही हूँ पूरा इक्विलिब्रियम लिखिए, तो जरा मैं यहाँ पूरा इक्विलिब्रियम लिखकर आपको बता रही हूँ कि H+ जब ये रिलीज करेगा, अब देखिए यहाँ जो फिनॉल है इसमें रेजोनेंस वगैरह होगा, और नतीजा जो हाइब्रिड का होगा उसके नतीजे में आप देखेंगे इस ऑक्सीजन पे आएगा Del+, और इस रिंग के अंदर Del- प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन न्यूट्रल वर्सेस ऑक्सीजन पॉजिटिव, बोले न्यूट्रल की कहां से बात आ गई भाई, सामने प्लस है ना ना, मैं कंपेयर कर रही हूँ विद अल्कोहल। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन इज न्यूट्रल, फिनॉल में ऑक्सीजन इज विद Del+। तो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जब ये Del+ वाली ऑक्सीजन आती है, तो Del+ वाली ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इसकी ताकत टू अट्रैक्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ और बढ़ गई, और ये और बढ़ गई तो इस H+ को एज H+ भगा पाना और आसान हो गया, इट हैज बिकम मोर इजी। आई थिंक यू गॉट दैट आइडिया। तो O न्यूट्रल से O+ विल, उससे लगा H विल बिहेव इवन मोर एसिडिक, है ना। तो हमने खुद कॉन्जुगेट एसिड से भी प्रूव करा, और यहां आप आएंगे तो ये अनायन भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, this is resonance stabilized, so this is definitely going to be strong acid, right? Con phenol strong acid, हाँ, but again you cannot say strong भाई किसकी तुलना में, तो आप हमेशा कहेंगे then alcohols। स्ट्रांग बोल दिया तो क्या HCl से स्ट्रांग हो गया, किससे स्ट्रांग हो गया, ये हमें हमेशा बोलना पड़ेगा। So it is a stronger acid as compared to alcohols, ये हम कह रहे हैं। इस एसिड फिनॉल के एसिडिटी वगैरह के बारे में आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी कंपल्सरीली। और मैंने एनसीईआरटी के अपने ही जो पर्सनल बुक है उसमें से ये इसके बिल्कुल एंड पीडीएफ में आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट, कुछ पेज ऐसे कैसे कॉपी करके मैं आपसे शेयर करूंगी, है ना, क्योंकि आप जब इन नोट्स को रेफर करें आपको बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। मैं क्या चाह रही हूँ आपसे, मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप ये टेबल जो है ना इसको खूब अच्छे से पढ़ें, और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज जो मुझे लगता है आपको काम आएगी वो मैंने यहाँ लिख दी है। ओके, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के साथ कैसे एसिडिटी बढ़ी है। ठीक, ये अभी कंफ्यूजिंग होता है कि 2 नाइट्रो कहाँ लगे तो वैल्यू कितनी होगी। ये वैल्यूज जो दोनों मैंने लिखी हैं ये भी pKa की ही हैं। ठीक, यहाँ आपको 4 ऐसे पेज मिलने वाले हैं, वो आप एंड में जब ये मैं शेयर करूंगी आप इनका इस्तेमाल करें। खैर, तो हमने कहा कि फिनॉल एक अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब सवाल उठता है कि अब फिनॉल में भी अगर मैंने ग्रुप्स लगाना शुरू कर दिए, अब फिनॉल में अगर मैंने ग्रुप लगाए, है ना, तो उसके अंदर एसिडिटी का इफेक्ट कैसे आएगा। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसा ग्रुप लगाया, लेट मी एग्जाम्प्लिफाई विद सम सिंपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से साइनाइड। अब मैंने ये साइनाइड लगाया ऑर्थो पर, है ना, मेटा पर और पैरा पर, ऐसे मैंने लगाया, और इसी तरह से हमने सिंपल फिनॉल पे भी कंपैरिजन लिया। अब हम इनकी एसिड बेस कंपैरिजन करने वाले हैं। कैसी अप्रोच, अगेन यू नो कि इनमें से सबको अनायन बनना ही बनना है, तो सबसे पहले आपको इन सब के क्या बनाने होंगे, कॉन्जुगेट्स। सबसे पहले आप इन सब के कॉन्जुगेट बनाएंगे, और जब आप इनके कॉन्जुगेट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से किसमें आपका जो अनायन है वो रेजोनेंस करके इन ग्रुप्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम फायदा उठा पा रहा है। भाई अगर फायदा उठा पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वो बढ़िया एसिड है, नहीं उठा पा रहा है तो वो खराब एसिड है। अब आप यहाँ देखें, हमने देखा कि भाई साइनाइड जो है ये -R और -I ग्रुप है, बट -R की तो अपनी लिमिटेशन है,
ये तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से ऑपरेट होगा। मेटा पोजिशन से मैं इस माइनस को साइनाइड तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ठीक है ग्रुप है, लेकिन ये रेजोनेंस ऑर्थो से चला साइनाइड में घुस गया, पैरा से चला साइनाइड में घुस गया। साइनाइड ने कहा भाई नेगेटिव मुझे भी दो, मैं भी शेयर कर रहा हूं आपके दुख को, मैं भी कम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब ऐसा हुआ तो वो साइनाइड उस अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित हुआ, और एज अ रिजल्ट ये ऑर्थो एंड पैरा वाले एसिड्स विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स, क्योंकि उन्हें -R मिला। यू गॉट माय पॉइंट? -I सब जगह से चल रहा है, लेकिन मरा हुआ है। किसकी कंपैरिजन में? रेजोनेंस की। सबसे ताकतवर -I मिला ऑर्थो को, फिर मेटा को, फिर पैरा को, और बेचारे फिनॉल को तो कुछ मिला ही नहीं। वो तो चुपचाप बैठा है भाई, सब राजा लोग आ गए, वो पीछे हाथ जोड़े खड़ा है। तो -R और -I। अब जब -R और -I की बात यहां करी गई -R और -I की बात जब यहां करी गई, तो देखें कि नेट जब हम फाइनल जब बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है पहले उससे बात करें। हाँ भाई रेजोनेंस बताओ कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? रेजोनेंस बोलेगा भाई मैं तो अपना आशीर्वाद जो है वो ऑर्थोपैरा पे दे रहा हूं। बोले ऑर्थोपैरा में भी आपको कोई विशेष किसी एक से प्रेम? बोले नहीं, दोनों बराबर हैं। जब स्ट्रॉन्गर इफेक्ट आपको दो चीजों को बराबर लेवल पे लाके छोड़ दे, तब आप सेकेंडरी इफेक्ट से आप बोलेंगे कि हाँ भाई इंडक्टिव। आप बताइए आप क्या कहते हैं? तो इंडक्टिव ने कहा कि मेरे हिसाब से तो ऑर्थोपैरा में ऑर्थो बेटर है। तो हमने कहा कि तब फाइनल ऑर्थो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन दिस सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। उसके बाद इंडक्टिव की आवाज आई, लेकिन पोजीशन 2 तो साहब मेटा को दीजिए। रेजोनेंस पहले बोल चुका है कि मेरे लिए ऑर्थोपैरा बराबर है। अब इंडक्टिव कह रहा है कि ऑर्थो के बाद मेटा की जगह दी जाए। यहां आपको निर्णय लेना होगा कि सेकेंडरी इफेक्ट, कमजोर इफेक्ट की बात नहीं सुनते हैं। ताकतवर, मेन, डोमिनेटिंग, भाई वो जो बोल रहा है पहले वो कीमती है। जहां वो बोल दे कि अब मुझे इससे आगे इनमें कोई बदलाव, कोई डिफरेंस नहीं करना, तभी आप सेकेंडरी इफेक्ट की बात सुने। तो रेजोनेंस ने बोला और तो उसके बाद पैरा, तो हमने यहां पर इंडक्टिव को नेग्लेक्ट कर देना और सीधे आया पैरा। अब हमने कहा कि रेजोनेंस भैया मेटा और फिनॉल में कोई आपको भेद हो, दोनों में ऊपर नीचे किसको रखना है? रेजोनेंस बोलेगा मेरे को तो दोनों से ही कोई मतलब नहीं, दोनों ही मैं कोई मदद नहीं दे रहा हूं। तब फिर से जब बड़े आदमी ने कहा कि मेरे को इनमें कोई अंतर नहीं, तो सेकेंडरी का वोट हमने लिया। कौन? इंडक्टिव। इंडक्टिव से हम पूछने गए कि भाई अंतर कर दे मेटा और फिनॉल में, किसको क्या? उसने कहा कि मेटा है ना बढ़िया, मैं कर रहा हूं थोड़ा दूर ही सही, लेकिन -I से तो फिनॉक्साइड को स्टेबल करूंगा, और फिनॉल सबसे कमजोर, सबसे पीछे। करेक्ट? दिस इज हाउ यू हैंडल सब्स्टिट्यूटेड phenols, carboxylic acid, carbocation, carbonyl, और दिस इज अ जनरल अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। जो भी सामने हो उस पे वो ग्रुप लगाएं, उस ग्रुप के इफेक्ट्स लिखें, वो इफेक्ट आपको किस तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ा रहे या घटा रहे हैं ये पहचानें। डोमिनेटिंग इफेक्ट की बात पहले करें, कमजोर इफेक्ट को सेकंड नंबर पर लें, और इस तरीके से आप क्वेश्चंस अप्रोच करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आराम से बनेंगे। आइए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, एच बॉन्डिंग, एसिड और बेस डिसाइड करने में। ये कैसे और क्यों आया? देखो एच बॉन्डिंग इक्विलिब्रियम, हमने कहा था ना कि कोई भी एक रिएक्शन है, से आपने कहा एक रिएक्टेंट है और फिर आप उससे बना रहे हैं प्रोडक्ट, है ना? रिएक्टेंट से आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट एसिड। क्योंकि अभी हम एसिड की बातें कर रहे हैं तो मैं H+ साथ में लिख देती हूँ। अब जब आप ये बात करते हैं और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इस रिएक्शन में डेल्टा जी की बात करते हैं, तो डेल्टा जी में आया डेल्टा H और डेल्टा S। अब डेल्टा S और डेल्टा H दोनों H बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इन सब फैक्टर्स पर इफेक्ट करेगी, इन सब फैक्टर्स का उस पर इफेक्ट होगा। क्या अर्थ है मेरा? देखो रिएक्टेंट है, अब मान लीजिए कि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है,
है ना, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, मेरा एच जो है वो एच बॉन्डेड है कहीं पर रिएक्टेंट में। अब मैं चाह रही हूँ भाई ये एच प्लस भगाओ, इसको एसिड की तरह बर्ताव करना है, एच प्लस हटाओ, एच प्लस नहीं चाहिए, इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कोई एच बॉन्डिंग वगैरह नहीं है। तो मुझे इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड पुश करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। और जब वो बेस बनता है, जब वो प्रोडक्ट बनता है, तो कोई नई एच बॉन्डिंग बना के मेरे खर्चे को कंपनसेट नहीं कर रहा है। खर्चा बढ़ गया, आमदनी कुछ हुई नहीं, तो डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम कहेगा भाई मुझे तकलीफ हो रही है, अब मेरे को डेल्टा जी फॉरवर्ड पुश करने में दिक्कत है। मैं कहूंगी इट विल बिकम लेस नेगेटिव, के ए विल गो डाउन। इज दैट क्लियर? ये इसमें आपको असर मिलेगा। अगर यहां कोई एच बॉन्डिंग नहीं है और प्रोडक्ट में आपको एच बॉन्डिंग मिल रही है कि अब बन रही है एच बॉन्डिंग, तो आप कहेंगे यार ये तो बढ़िया है साहब, बहुत अच्छा, बाद में मिल जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगा, डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि एच बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, एच डेल्टा एच विल बिकम मोर नेगेटिव। हम कहेंगे के बढ़ गया, अच्छा एसिड है, बेटर एसिड हो जाने वाला है। ठीक, कभी आप ऐसी जगह पहुंच जाएं, बोले इसमें भी एच बॉन्डिंग है और इसमें भी एच बॉन्डिंग है, भाई अब क्या करें, दोनों में एच बॉन्डिंग है। कोई बात नहीं, आप उस समय डिसाइड करेंगे कि किस तरफ एच बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नाउ इस केस में आप डिसाइड करें कि इक्विलिब्रियम विल गो टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड, जिस तरफ उसे स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग मिलेगी वो उस तरफ को झुकेगा। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम जाएगा जहां पर उसको एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर मिल रहे होंगे। क्लियर? आइए हम इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर, है ना। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। अब देखिए आप, फिनॉल है, फिनॉल हुआ, या आप इसको भी देख सकते हैं अपना सैलिसल्डिहाइड। ये देखिए यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है ऑर्थो के अंदर। अब जब हमने इसको कॉन्जुगेट में डाला, जब इसने H प्लस रिलीज कर दिया, तो इस तरह की कोई एच बॉन्डिंग हमें नहीं मिलने वाली है, नो एच बॉन्डिंग। तो मुझे इस ऑर्थोनेट्रोफिनॉल को यहां से कॉन्जुगेट में पुश करने के लिए मुश्किल होने वाली है, ये एच को हटाना है, और एच बॉन्ड कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इट बिकम्स रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमूव दिस H प्लस, राइट। इसकी कंपैरिजन में इसका नियरेस्ट साथी जो है, और वो कौन है, पैरानाइट्रोफिनॉल, उसको रेजोनेंस मिल रहा है जैसा कि इसको मिल रहा है ना, क्योंकि रेजोनेंस से दोनों बराबर थे, लेकिन उसको एच बॉन्डिंग की वजह से होने वाली रुकावट नहीं मिल रही है। ठीक, अब तुम बोलोगे फिर तो मेटा भी बढ़िया होगा ना। ठीक, शेर थोड़ा सा कमजोर हो गया, रेजोनेंस फिर भी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ ना। ठीक, थोड़ा एच बॉन्डिंग ने आके खेल बिगाड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो गया। तो जब आप ऐसी बात करें तो मैं कहूंगी रेजोनेंस से के ए जो आ रहा है, रेजोनेंस है ना, ड्यू टू रेजोनेंस के की वैल्यू मैं कहूंगी कि सबसे अच्छे आ रही थी ऑर्थो पैरा, और ये कह रहा था कि मेटा और फिनॉल बराबर है। इंडक्टिव क्या कह रहा था, माइनस आई कह रहा था कि भाई ऑर्थो मेटा पैरा और फिनॉल है। ठीक, तो इन सब ने आपस में बैठकर निर्णय, ऑर्थो पैरा, हमने कहा सेकेंडरी से पूछो, ऑर्थो पैरा मेटा और फिनॉल, यहां तक हमारी बात हो गई थी। लेकिन क्योंकि एक नया इफेक्ट घुस गया, उसका नाम है दिस एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, तो उससे क्या होगा, हम कहेंगे बट ड्यू टू एच बॉन्डिंग, हमेशा याद रखें एच बॉन्डिंग से अगर कोई एसिड बेस अपनी जगह से पीछे हटेगा तो वो सिर्फ उन भाइयों में आगे पीछे पोजीशन करेगा जहां उसकी रेजोनेंस की कंपटीशन समान हो। ऐसा नहीं कि चले सीधे ऑर्थो को उठा के फेंक दिया मेटा के पीछे, बोले भाई तेरे तो एच बॉन्डिंग है पीछे हट जा ना। एच बॉन्डिंग का नुकसान कभी भी रेजोनेंस के फायदे पर भारी नहीं पड़ेगा। ओके, सो यू विल पुश इट जस्ट इतना सा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा पैरा
फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर PHOH। ये होगा आंसर। सिमिलर तरह का आप सवाल करें, नाइट्रो को बदल के CHO कर लें, सेम ही चीज आपको देखने को मिलेगी। और एक जनरल अप्रोच आपने सीखी कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एसिड बेस इक्विलिब्रियम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। और बढ़ते हैं हम फिनॉल से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। ये तो आप में से काफियों को याद ही होगा, ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिसोसिएट टू RCOO minus and H plus. Yes, it is a resonance stabilized, that too equivalent resonance stabilized. तो बहुत अच्छी resonance energy है and they are very good as an acids. बिल्कुल बढ़िया। नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उनका pK 4.75 है। राइट, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे स्ट्रांग होता है फॉर्मिक एसिड, फिर होता है बेंजोइक एसिड, ये मैं सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की बात नहीं कर रही, और फिर होते हैं बाकी एलिफेटिक एसिड्स, है ना। सबसे ऊपर फॉर्मिक, फिर बेंजोइक और फिर बाकी एलिफेटिक। ऐसा नहीं कि बेंजीन आ गया तो सबसे आगे उसे हम कर देंगे। क्लियर, के का ऑर्डर ये होता है। और उनमें भी अगर इन आर में, इन पीएच में आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाए, एसिडिटी बढ़ना है, के ए इंक्रीज होगा, दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एसिड्स। जैसा मैंने कहा कि आई हैव अटैच्ड सम फाइल्स, सम पेजेस इन द एंड, ऐसे ही मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी 2 पेज अटैच करे हैं। आप यहाँ देखेंगे ये 2 पेज जो हैं ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी है बच्चों, हाँ, ज्यादा परेशान ना होना ये क्या है। और ये रेड से मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो एसिड्स आप अलग अलग समय देखते हैं उनका ऐसे ही पीके अपनी पर्सनल कॉपी में लिख रखा था, वो डायरेक्ट आपसे शेयर कर लिया। फॉर्मिक एसिड इज 3.75। ओके, अब विड्रॉइंग ग्रुप्स देखो, CF3COH कर दिया, 0.2 ही हो गया, एकदम ही कितना ताकतवर एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड इज 4.19, एसिटिक इज 4.76, फिनॉल इज 10, है ना, इथेनॉल लगभग 16। ये आप अपने पास रखें और ये सारी वैल्यूज को देखते हुए एक रफ ऑर्डर जो इन सब के बीच में मुझे मिला। अच्छा, इनमें से अधिकतर चीजें इन टेक्स्ट में या नेक्स्ट पेज में ये यहाँ पर डेटा में दी हुई हैं बच्चों, है ना, ये करेक्शन है, ये सब दिया हुआ है, और इसलिए इन सब को लेकर सवाल आने का चांस मेंस में बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर जो मैंने नीचे बनाया है ना बेटा, इसको आप जरूर से ध्यान से देख लें, समझ लें, अपनी एनसीईआरटी में कॉपी कर लें, इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करें। HCl सबसे स्ट्रांग, फिर CF3। अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, राइट, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन नाइट्रो लगा हुआ बेंजोइक एसिड, देख रहे हो। फिर सिंपल बेंजोइक एसिड, फिर अल्कीन। अरे मजेदार, तो देखो ये OCH3 जैसे जब लगा तो बेंजोइक एसिड इस विनाइल ग्रुप के भी पीछे पहुंच गया है, राइट। तो ये जो लिस्टिंग है ये इसीलिए की गई है कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे ये सारे डेटा और परेशान होंगे, ये सब पास्ट मेंस का कलेक्शन एक जगह है, तो इसको ऐसा का ऐसा इस्तेमाल कर लें। और एक ये पैरा भी मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा था बेटा, इसलिए ये यहाँ पर मैंने शेयर करा है कि सिमिलरली द पीके ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये सब चीजें। तो ये 2-4 चीजें एनसीईआरटी की आप प्लीज थोड़ा पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी से आप जानते हैं क्वेश्चन आना ही है, तो कोई लापरवाही हम अपनी तरफ से क्यों करें, आप पूरी तैयारी से जाएं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये एसिड्स होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ एसिडिटी बढ़ेगी। बेंजोइक एसिड्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक एक्सेप्ट फॉर्मिक। और उसके अंदर फिर वही बात, विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे Ka इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगाएंगे Ka विल डिक्रीज, दैट इज देयर, नो इश्यूज। बट एक चीज होती है बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड्स। अब ये क्या होती है ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड्स? देखो क्या होता है, बेंजोइक एसिड में कोई ग्रुप आपने यहां लगाया ऑर्थो पोजीशन पर, और ये ग्रुप जो है ये धक्का मुक्की करना शुरू हो गया हमारे
बेंजोइक एसिड के साथ इसमें जीओसी के लेक्चर में हमने एक शब्द पढ़ा था ना, SIR। तो COH ग्रुप बड़ा है, तो ये G जो है इसको धक्का दे रहा है, और इस धक्का देने की प्रोसेस की वजह से, इस धक्का देने की वजह से ये H+ हटा देना चाहता है, इस H+ को भगा देना चाह रहा है, और ये कॉन्जुगेट बन रहा है। ये मैंने बहुत ही लेमैन के तरीके से आपको बताया। बाकी होता ये है कि ये G जब धक्का देता है तो ये रोटेट हो जाएगा सिस्टम, ये COH थोड़ा रोटेट हो जाएगा, और नाउ दिस रिंग विल नॉट रेजोनेट विद दिस COH। रेजोनेंस नहीं करेगा, सिर्फ -I करेगा। रेजोनेंस तो वैसे भी COH के एसिडिटी के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उस रेजोनेंस से मेरे OH के रेजोनेंस में कमी आ रही थी, और ऑक्सीजन का del+ जितना हो सकता है वो कम हो रहा था। तो ये रेजोनेंस रुक जाने की वजह से ये एसिड्स बेहतर हो गए। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन ये, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids will behave stronger acids will be stronger acids in their set of comparative compounds। ओके, अपने सेट में, या सिर्फ अपने सेट में ही बात होगी, इधर उधर नहीं होगी। मतलब अगर आपने कहा कि भाई ये बेंजोइक एसिड्स में आप G नाइट्रो मान लीजिए, तो मैं कहूंगी ठीक है, बढ़िया बात है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो होगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद होगा पैरा, फिर उसके बाद होगा मेटा, और उसके बाद होगा बेंजोइक एसिड। ये अर्थ है इसका। ये ऑर्डर में हम पूरी पुराने तरीके से ही लिस्टिंग करेंगे, और फिर ऑर्थो वाला एसिड कहीं भी रखा हो उसको उठा के टप्पी दे के सबसे टॉप पोजीशन पे रख देंगे। दैट इज हाउ यू विल हैंडल दिस ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। और यहाँ ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि OH हो, OMe हो, एफ्लोरिन हो, ये छोटा है ये बड़ा है, कुछ भी नहीं। एनी ग्रुप ऑलवेज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो सबसे लिस्ट में आगे ही होगा। दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन। खैर हाइड्रोकार्बन में मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, C ट्रिपल बॉन्ड C- और H+। आपको पता है इन टर्मिनल अल्काइंस का जो पीके है वो 25 है, और HCN का पीके भी 25 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज एज गुड एज HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। टर्मिनल अल्काइन, अल्कीन और अपना अल्केन बिल्कुल भी नहीं, वो कोई एसिड या की दौड़ में नहीं है। लेकिन टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही मजेदार बात, हाँ, वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल अल्काइंस, बट टर्मिनल अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। ये क्या मजेदार बात मैंने कह दी कि टर्मिनल अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। अमोनिया से तो बोले इससे क्या फर्क होगा? अरे देखो बेटा, ये कितने कमाल की बात होने वाली है कि आप जब इसमें NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया रिलीज हो गई, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज डिस्प्लेस्ड वीकर एसिड अमोनिया फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये रिएक्शन यहां कर दी इसने। ये रिएक्शन समझने के लिए आपको याद रखना है कि टर्मिनल अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अमोनिया, राइट। दूसरा इसी तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, which acid will react with NaOH, which will react with NHCO3। इसकी मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहती हूँ, फिर हम बाकी बातें करेंगे, है ना। जब भी आपसे कहा जाए ये उससे वो इससे रिएक्ट कर रहा है, क्या करें क्या नहीं, ये सबसे पहले हम उसको सीखें। जैसे बोला अल्कोहल को रिएक्ट कराओ NaOH से और बताओ ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा नहीं होगा। फिनॉल को रिएक्ट कराओ और बताओ। एक सेकंड बेटा, हम कैसे करेंगे? हम ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले पूरा लिख लेंगे कि ये हो गया RO- Na+ और ये वाटर, ये हो जाएगा PHO- Na+ और वाटर। आप लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे तो दूसरा काम आप करेंगे कॉन्जुगेट 1 कॉन्जुगेट 2 वाली पेयरिंग।
हमने कहा ये यहाँ कॉन्जुगेट एसिड 1 है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस 1 है। फिर हमने कहा कि अब पेयर 2 की बात करी, ये तो कॉन्जुगेट बेस पेयर 2 का है और ये कॉन्जुगेट एसिड पेयर 2 का है। सेम कहानी मैंने सेकंड इक्विलिब्रियम में भी रिपीट टेलीकास्ट कर लेना है। ये हो गई 1 और ये हो गई, सॉरी हमने 2 लिख दिया गलती से, 1 कर देते हैं। ये पेयर 1, ये पेयर 2 है। ठीक, अब जब आप ये कर लेंगे तो आप चेक करेंगे कि ओके मेरे पास सेट में 2 एसिड हैं, एक है अल्कोहल, एक है वाटर। ठीक है, आप 2 एसिड पहचान लिए। आप एसिड की एसिड से तुलना करिए, बेस की बेस से तुलना करिए। अब आप बताइए मुझे कि अल्कोहल और वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? हम कहेंगे ये है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है कि अल्कोहल में आर का प्लस आई है, तो ये तो कमजोर करेगा ना एसिड को। अब बेस मेरे पास 2 हैं, एक OH माइनस, एक RO माइनस। ये कौन है? बोले तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस RO माइनस है OH माइनस की तुलना में। और जैसे ही आपने पाया इक्विलिब्रियम एज अ रूल, इक्विलिब्रियम ऑलवेज goes towards weaker, always goes towards वीकर एसिड एंड बेस। ये फिक्स है, वो हमेशा वीकर एसिड और बेस की तरफ ही जाएगा, ये पक्का है। तो ये इक्विलिब्रियम को किधर दौड़ना है? इस तरफ, और इस तरफ दौड़ना है मतलब क्या ये NaOH से रिएक्ट करेगा? मेरे ख्याल से तुम सब मन में अब तक बोल चुके हो कि नहीं भाई ये नहीं रिएक्ट करेगा। आइए दूसरे पर आते हैं। यहाँ पर हमने कहा फिनॉल और वाटर, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। NaOH और फिनॉक्साइड ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इस बार ये इक्विलिब्रियम किधर दौड़ेगा? फॉरवर्ड। समझ गए मेरी बात? तो फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा, करेगा, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि NaOH is having a conjugate base OH minus. So any acid which will be stronger acid than water will react with NaOH. अल्कोहल नहीं, फिनॉल यस। और अगर फिनॉल यस तो फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी यस। कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैसे ही वाटर से काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्ट करेगा। इसी सीक्वेंस में मन में ख्याल आता है कि NaHCO3 को कैसे करेंगे भाई? आओ उसको भी बता देते हैं कि NaHCO3 से जब हमें रिएक्शन कराना है बच्चों, तो इधर बनना है H2CO3, जिसको आप अल्टीमेटली फिनॉक्साइड, इसको आप फिर अल्टीमेटली ब्रेक करते हैं ना CO2 लिबरेशन के लिए। और अगर आपसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जाए NaHCO3 सेम तरीके से, तो RCO माइनस और H2CO3। फिर से वही काम, हमारा एसिड, यहाँ ये एसिड है पेयर 1, इसका पेयर 1 का बेस ढूंढो, ये रहा पेयर 1, है ना। अब पेयर 2 पर आ जाओ, ये H प्लस एक्सेप्टर है, तो ये है बेस 2 और ये है एसिड 2। आओ इसमें भी लिखवा मुझे फटाफट, ये हो गया बेस 2 और ये हो गया उसका एसिड पेयर 2, है ना। ये है इसका एसिड 1 और ये है बेस 1, है ना। अब सवाल उठता है कि पीके हमें क्या करना है? कुछ पीके अगर आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते तो रेजोनेंस से भी ये सवाल किया जा सकता है। मैंने आपकी कंफर्ट के लिए यहाँ लिस्टिंग कर दी है, आप इन्हें देखकर यूज कर लीजिएगा। H2CO3 का फर्स्ट डिसोसिएशन, है ना, क्योंकि ये क्या बनाएगा? HCO3 माइनस। यही कॉन्जुगेट पेयर तो हमारे सवाल में काम आ रही है, HCO3 माइनस से 6.35 H2CO3। फिनॉल का देखिए 9.95, है ना, तो 6.35 और 9.95, चलो 9.95 है इनका पीके और इसका है 6.35 इनका पीके। अब आप बता सकते हैं कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? H2CO3 seems to be a stronger acid, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड को तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो दिस रिएक्शन विल नॉट गो फॉरवर्ड। बट इस पर आ जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल पीके कितना होता है? 4.75 और H2CO3 अभी मैंने बताया 6.35। और अगर ऐसा है तो इस बार this equilibrium will rush towards forward, and that is why carboxylic acid displaces
H2CO3 from NHCO3 and thereby liberating CO2. तो कोई भी ऐसा एसिड जिसकी pKa की वैल्यू 6.35 से कम हुई, जो स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, वो H2CO3 से CO2 लिबरेशन कराएगा। यहां मैंने सभी का लिख दिया है जो यूजुअल आपको काम आएंगे, आप इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं, अब हमारा एसिड का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं बेस पर जो हमने बेसिक सीखा वो ऐसा का ऐसा हमारे लिए बेस पर भी लागू हो जाएगा। राइट, इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी, एच बॉन्डिंग, उन चीजों का आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें। आती है बातें फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कि क्या चीजें इफेक्ट करेगी। तो डेल्टा जी वाली चीजों को कंटिन्यू दिमाग में रखते हुए कुछ नई चीजें जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ। ईज ऑफ लोन पेयर अवेलेबिलिटी एंड डोनेशन ऑन द बेस, कि जो बेस है, हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में ना, हमें H+ एक्सेप्ट करना है, लुईस का बेस ब्रॉन्स्टेड का बेस सेम है। तो जो बेस है, ऑर्गेनिक बेस कौन होता है? अमोनिया, पिरिडीन, एनिलीन, अमीन्स, अमाइड्स, यही सब होंगे। और जब ये होंगे तो इनको लोन पेयर डोनेट करना होगा, H+ को देनी होगी लोन पेयर। जब ये लोन पेयर देंगे, when they we want them to donate, तो अब बेस जो है वो जितनी इजीली H+ को लोन पेयर देगा, द ईज, जितना इजीली दे पाएगा उतना ही ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा। बात आई है लोन पेयर देने की, तो ईज किस पर निर्भर करेगी, किन पर डिपेंड करेगी? अगर ये डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Kb बढ़ जाएगा क्योंकि डोनेशन इजी हो गया। और अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, है ना, तो sp हाइब्रिडाइज्ड, डोनर अगर सेम है, सिर्फ आपको उनके हाइब्रिडाइजेशन में बात करनी है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड लेस ईज हुई डोनेशन की, देन sp2, देन sp3, प्रोवाइडेड एटम इज सेम, जिससे आप डोनेट करा रहे हो, एटम, और आई शुड राइट डोनर एटम इज सेम। अगर डोनर एटम सेम है तो आप हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करिए, है ना। और ये चीज आप बहुत अच्छे से तुरंत समझ जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि Kb ऑफ CH3 CH2 NH2 will be greater than CH3 CH double bond NH will be greater than CH3 C triple bond N। क्यों? परसेंटेजेस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां पर लोन पेयर रखी गई है डोनर एटम के अंदर, उसकी बढ़ गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, डोनेशन की टेंडेंसी कम होती चली जा रही है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? ईज ऑफ डोनेशन। और इसी ईज में एक और चीज जो आती है वो आती है रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस, अब कैसे रेजोनेंस? जैसे अगर साइक्लोहेक्सेन पर NH2 है और एनिलीन पर NH2 है, तो डोनेशन की ईज इसको साइक्लोहेक्सेन को ज्यादा है, क्योंकि यहां तो लोन पेयर गया, डोनेशन अंदर ही अंदर रेजोनेंस घूम रहा है। अब जब H+ आएगा तो ये लोन पेयर दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये लोन पेयर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए बेस साइक्लोहेक्साइलामीन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, है ना। आप इसको इसके कॉन्जुगेट से भी प्रूव कर सकते थे कि ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड PHNH3+ और ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड साइक्लोहेक्साइल ग्रुप NH3+, है ना। और अब ये ग्रुप जो है ये तो है +I, ये ग्रुप है -I। यहां BH रेजोनेंस नहीं करेगा, आप +R ना सोच लें, क्योंकि इसका कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। ये प्लस एक फुलफिल्ड नाइट्रोजन, फुल ऑक्टेट नाइट्रोजन के ऊपर कोऑर्डिनेट का प्लस है, तो ये -I। तो कॉन्जुगेट बेस भी किसका स्टेबल आ रहा है? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप का, इसलिए इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो डोनेशन की ईज और उसके अलावा कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी, दोनों ही फैक्टर आपको इंडिकेट कर रही हैं साइक्लोहेक्साइल इज अ स्ट्रॉन्गर बेस।
कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे RNH2 और RCONH2 में आपसे कंपैरिजन करवाई गई। हाँ, आप पहले भी रेजोनेंस से कर सकते हैं, बट मैं बार बार कह रही हूं, आप पूरा इक्विलिब्रियम बनाने की हैबिट डालिए। वो 30 सेकेंड्स जो लगेंगे वो आपको जब नंबर देकर जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ -1 जो अल्टीमेटली -5 हो जाता है ना। 4 आपने अटेम्प्ट करे, खुशी के 4 भी गए और ऊपर से -1 और। आइए तो ये देखिए, अब यहाँ अमोनियम में रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर ये ग्रुप कैसा है, +I, यहाँ पर ये ग्रुप कैसा है, -I। किसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है, अमीन का, और इसलिए KB of RNH2 will be stronger than RCONH2। क्लियर? तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी फैक्टर नंबर 2 होगा। फैक्टर नंबर 3 इज फ्लिपिंग। दिस फ्लिपिंग इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन इन्वर्जन। ये खास तौर से सेकेंड पीरियड की ही खासियत है। ये हर एक ग्रुप में, हर एक पीरियड में नहीं मिलेगी। सेकेंड पीरियड का होना चाहिए सेंट्रल एटम, पहली चीज। दूसरा, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये दूसरी कंपल्शन है। और तीसरा, उस पे एटलीस्ट या 1 लोन पेयर होना चाहिए। इन तीनों चीजों को जब सेटिस्फाई करे तब आप फ्लिपिंग या टेट्राहेड्रॉन इन्वर्जन की बात करेंगे। क्या है फ्लिपिंग या टेट्राहेड्रॉन इन्वर्जन? देखिए, नाइट्रोजन जो है, अगर मैं कहूं कि इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन है इसका, मैं अमोनिया की बात कर लेती हूँ, है ना। ये प्लेनर होती है पहले, ओके, ट्रांजिशन स्टेट है, प्लेनर होती है मतलब ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअस इसमें एक फिनोमिना हो रहा है कि ये जो अमोनिया, आप थोड़ा कैमरे मेरी स्क्रीन की तरफ देखिएगा, कि ये जो इसके 3 ग्रुप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये पहले प्लेन में आते हैं और फिर अब इनकी नीचे और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो ये प्लेन है। ये यहाँ पर इट इज sp2, यहाँ ये sp3 था, और अब जब ये वापस पलटा तो ये देखिए, ये हो गया इसका इन्वर्टेड टेट्राहेड्रॉन। लोन पेयर नीचे आ गई, वापस sp3 हो गया। इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये sp2 है बच्चों, हाँ, ये sp2 जब राइट लेफ्ट किसी भी तरह sp3 में जा रहा है तो वो दोनों की तरफ उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। नतीजा होता यह है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उस जगह पर कम हो गई है ना। ये अमीन की बात, अमोनिया की बात करूं तो ट्रांसफर 21 टाइम्स पर सेकेंड ये हो रहा है। ये चीज जो हो रही है 21 टाइम्स पर सेकेंड, जैसे फैन चलता है ना, फर 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 फर, आप उसकी ब्लेड्स नहीं देख पाते जब वो चलता है, तो लगभग ऐसी ही कुछ हालत इस लोन पेयर की, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर ऐसे। ओके, सो ये जहां फ्लिपिंग होगी डेफिनेटली वहां पर कमी आती है बेसिसिटी की। लेकिन फिर से प्रिकॉशन, क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब कंपैरिजन में, हाँ, इंपॉर्टेंट नोट की तरह से लिख रही हूं, यूज फ्लिपिंग ओनली फॉर आंसरिंग, फॉर कंपैरिजन only when one of the molecule has no flipping, has zero, has no flipping, बिल्कुल उसमें हो ही ना रही हो, तब आप इस्तेमाल करें, वरना ना करें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल। क्योंकि कोई चीज 10^21 टाइम्स हो रही है, अब 10^9 भी हो गई तो भी वो ऐसी ना हो जाएगी कि इट विल बी इंक्रीज द बेसिसिटी टू वेरी हाई लेवल। सो यूज इट ओनली व्हेन it stops, and it stops when the lone pair, when the nitrogen is at bridgehead. Here is the example. Now this is going to be far more basic, है ना, then say this compound, इस तरह का कुछ अगर मैंने कंपाउंड बनाया, ये मैं ट्राइथाइल amine or quinacridine. This compound is famous, though I don't think it is very good for quinacridine, हाँ, for males ये एडवांस में काम आ सकता है। क्लियर? सो मूविंग फर्दर,
आइए ऑर्गेनिक बेसिस में बात करें अमीन्स की। अमीन्स में आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि H बॉन्डिंग का भी इस्तेमाल करना है ना। RNH2 प्राइमरी अमीन जब H प्लस बनी तो ये बनेगी RNH3 प्लस। 2 डिग्री अमीन जब H प्लस लेगी तो ये बनाएगी R2NH2 प्लस। और 3 डिग्री अमीन ने जब H प्लस लिया तो इसने बनाया R3NH प्लस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक प्लस आई ऑफ अल्काइल, और उसके हिसाब से 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री अमीन इज बेटर देन 1 डिग्री इज बेटर देन अमोनिया, है ना। और एक है कि ये जो कॉन्जुगेट बने हैं ये सॉल्वेंट के साथ H बॉन्डिंग, है ना, कैसे करेंगे। H बॉन्डिंग विथ वाटर, हम ये वाटर के अंदर बात करें तो सबसे अच्छी H बॉन्डिंग करेगा 1 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। अब देखो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर दे रहे हैं कि अगर आई प्लस आई डोमिनेट करे तो क्या, और इंडक्टिव डोमिनेट करे तो क्या, है ना। इफ प्लस आई डोमिनेट्स तो हम कहेंगे तब 2 डिग्री सबसे अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि इसको दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। ये डोमिनेंस सिर्फ 3 डिग्री और 1 डिग्री में ही बंटवारा कर रहा होगा, तो 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। और if H bonding dominates तो ये होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमोनिया। कंक्लूजन, ओनली फॉर मिथाइलामीन, ओनली फॉर R इक्वल टू Me, है ना, आंसर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। एंड फ्रॉम मिथाइल एंड ऑनवर्ड्स, from R equal to ET and onwards, प्लस I डोमिनेट करना शुरू हो जाता है और आंसर हो जाता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। ये अमीन नहीं लिखना है मुझे, यहाँ अमोनिया लिखना है, ठीक। ये अमीन नहीं है बच्चा, ये है अमोनिया, अमोनिया, ओके। अब देखिए आप इसे कितने आसानी से याद रख सकते हैं। छोटा होता है ना मिथाइल इथाइल वगैरह की तुलना, तो 213 वैल्यू याद रखिए 213, और इथाइल बड़ा तो 231। अमोनिया तो सभी में पीछे है, नहीं तो उसे आप जीरो कर लीजिए, 2130 2310। ओके, तो आपको डायरेक्टली याद रहेगा कि ऑर्डर कैसा और क्या होता है। क्लियर। अमाइड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर गोइंग टू बी वीकर बिकॉज ऑफ minus I effect of our CO group in the conjugate acid, as well as the resonance will further decrease. So they are going to be weaker than amines. Amines stronger base than amides, right? Next आता है pyrrole pyridine aniline, very important, है ना। Pyrrole is this. अब देखिए यहां पर ये लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा है, और जब ये ऐसे H प्लस ले लेगा तो जो स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट का बन रहा है ये बन रहा है नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है, और ये पहले था एरोमेटिक। यही काम मैं पिरिडीन में भी अगर करूं, पिरिडीन ऐसा H प्लस ले ले तो यस यहां पर H प्लस आ भी गया तो भी मेरी एरोमेटिसिटी का कोई नुकसान नहीं रहा, एरोमेटिसिटी वैसी की वैसी ही बनी रही। तीसरा है हमारा एनिलीन NH2, ये भी H प्लस ले ले तो मुझे एरोमेटिसिटी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पीएच ग्रुप की एरोमेटिसिटी कंटिन्यूड, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक रहा। तो अब जब ये लास्ट के दो तो एरोमेटिक रहे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन तीनों में sp2 है, अगर मैं ये मान भी लूं कि तीनों में sp2 ही है, या
मैं मान भी लूं, है ना, ये अलग है कि एनिलीन में sp2 है नहीं, मान लेते हैं चलो, तो भी सबसे बड़ा नुकसान है एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना। इसलिए पायरॉल जो है वो सबसे वीक बेस होगा, वीकेस्ट होगा पायरॉल, उससे स्ट्रॉन्गर होगा एनिलीन। क्यों? क्योंकि ठीक है पीएच का -I मिलेगा और NH3+ को कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, और पिरिडीन होने वाला है सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको पूरी बेंजीन रिंग का रेजोनेंस भी मिलने वाला है, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर? लास्ट आता है एनिलीन्स में ऑर्थो इफेक्ट। बेटा एनिलीन्स में ये NH2 और G, तो यूं समझे आप कि जब ये H+ एक्सेप्ट करता है और ये कॉन्जुगेट में जाएगा NH3+ और G, तो ये G असल में इस NH3+ को धक्का लगाता है, तो ऑर्थो इफेक्ट होता सिर्फ एसिड में ही है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस पर इफेक्ट आ रहा है, इसलिए यहां इसको अलग से मेंशन कर रहे हैं हम। तो ये G NH3+ को धक्का लगाएगा, मेकिंग द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, मेकिंग दिस एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, लेस बेसिक। इसीलिए हम इसे कहते हैं SIP। व्हाट इज SIP? SIP इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो ये पीछे को धक्का लगा रहा है, इसे कमजोर कर रहा है। पर COH की तुलना में NH3+ क्योंकि छोटा ग्रुप है, इसलिए यहां पर थोड़ा एक्सेप्शन आएगा, वो मैं अभी बताती हूं आपको। खैर, तो इससे क्या होगा, है ना, इससे ये होगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होंगी, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, दे विल बी weakest in their comparative sets, comparative sets, है ना। मतलब कौन सा कंपेरेटिव सेट? ऑर्थो मेटा पैरा में जो भी होंगे सब आप ऑर्डर निकाल लीजिए, ऑर्थो को सबसे उठा के लास्ट में फेंक दीजिए, एनिलीन से भी पीछे फेंक दीजिए। क्लियर? एक्सेप्शन जो है वो है OMe और OH। ठीक, एक्सेप्शन SIP not applicable for G equal to OMe and OH, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी आप इसे हमेशा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम आगे जाएंगे तो एनिलीन का भी मैंने एक पेज इसमें शेयर करा है बच्चों, सबसे लास्ट में। ये पेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों शेयर करा है, इसमें क्या खास है? बेटा इसको खास तौर से मैंने इस पर्टिकुलर सेट के लिए शेयर करा है। आप देखें PHCH2NH2, आपको ऐसा लग सकता है कि पीएच का तो -I होगा, तो वो तो अमोनिया से वीकर होना चाहिए एज अ बेस, या आपको लग सकता है कि हम इसे कहाँ रखें, कैसे रखें, तो ये यहाँ पर इसमें डेटा में मेंशन है एनसीईआरटी में बच्चों। सो बी वेरी केयरफुल, यूज दिस डेटा। इस ऑर्डर को जो मैंने मार्क किया उसको ढंग से स्टडी करें, पढ़ें, समझें, और तभी कोई चीज सॉल्व करें। क्लियर? इसी के साथ हमारा एसिडिटी बेसिटी का डिस्कशन यहाँ हम खत्म करते हैं। मैंने अपनी तरफ से लगभग सभी एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स जो यूजफुल होंगी आपके मेंस के लिए, जो पास्ट क्वेश्चंस आए हैं, वो थ्योरी के फॉर्म में यहाँ कवर करी हैं। आप पुराने सालों में, खास तौर से लास्ट 4 years 19, 20, 21, 22, इन 4 सालों के पेपर्स को देखिए और इस थ्योरी के बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं अपने एंड से उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। I hope the lecture was in fact very useful for you all and you will enjoy the thorough discussion of acidity and basicity. But do not forget to like this video and I request you to share and subscribe. Thank you.